Good morning, students. This is your another class for chapter 4. In the previous class, we have discussed about European Union, that was EU, and these organization is very important to control US hegemony in the world politics. There was some other organization also, which was known as Association of Southeast Asian Nation, that was ASEAN. So we have already discussed ASEAN in the previous class, and I told you that ASEAN was the Association of Southeast Asian Nations. But before before continuing my topic, first of all, I just want to know that why so many students are not taking classes. I've seen few students only in class 12th F who are regularly taking classes. In 12th E, most of the time attendance reaches to 20 to 25 students, and there are 31 students enrolled in class 11. Sorry, this is 12th E. So please students, these classes are very important to you. Don't miss your lectures, make your notes, do your assignment. That is really good for you. It will be helpful to you for your final examinations. So I hope that in future most of you will take your classes, and those who remain absent during that lecture, they can see the lecture later also. आप पूरा सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पर प्लीज़ अपने असाइनमेंट्स को रेगुलरली करिएगा. Otherwise, it is going to be very difficult for you to cope up with the syllabus. So, I am beginning my topic from the Association of Southeast Asian Nation. These Southeast Asian nations are the region which suffered, this is the region of Asia suffered the economic and political consequences of repeated colonialism both by Europe and Japanese. They were under the pressure to join one or another power bloc also. In 60s, they have started thinking to join the NAM powers, but later on they had made their own organization in 1967. It was the organization established by Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand. You must remember that they have signed a Bangkok Declaration. ये पांचों देश कहाँ मिले? बैंकॉक में. एंड इन्होंने एक समझौता किया जिसका नाम क्या रखा गया? बैंकॉक डिक्लेरेशन. Their main objective was not to accelerate war. Rather, their objective was to accelerate economic growth through the social progress and cultural development. Their another objective was to promote regional peace and stability based on the rule of law and the principles of United Nations. Over the years, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos PDR, Myanmar, which is known as Burma, and Cambodia joined the ASEAN, taking its strength to 10. So, presently there are 10 members in ASEAN. Unlike European Union, there is a little desire in ASEAN for supranational structure and institution. ये जो आसियान है, यहाँ पर ये यूरोपियन यूनियन की तरह एक सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनना चाहता. A supranational organization is that organization in which everyone have to submerge their identity. While in ASEAN, no one needed to submerge their identity.
Rather, they can maintain their own culture, they can maintain their own language, they can maintain their own foreign relations. एक सुपरानेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जहाँ पर सबको अपनी आइडेंटिटी को एक कर देना होता है, परंतु आसियान देशों में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है. ASEAN countries have celebrated which has become known as ASEAN Way. ASEAN Way मतलब they have their own way of working. This ASEAN Way is a form of interaction that is informal, non-conformist and cooperative. ये क्या रहेंगे? ये सब देश इनफॉर्मल रहेंगे, इसके अलावा एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होंगे, लेकिन कोऑपरेट करेंगे. The respect for national sovereignty is critical to the functioning of ASEAN. कि आसियान देशों में जो नेशनल सोवेरेनिटी है, राष्ट्र की जो प्रभुसत्ता है, राष्ट्र की जो पावर है, इन्होंने उसे सर्वोपरि रखा है. ASEAN is the fastest growing economies in the world. ASEAN broadened its objective beyond the economic and social spheres. शुरू में मैंने आपको बताया इनका मुख्य उद्देश्य क्या था. आर्थिक मामलों में एक दूसरे को हेल्प करना, सोशल मामलों में, और एक दूसरे की टेरिटरीज की रिस्पेक्ट करना. In 2003, ASEAN moved along the path of EU by agreeing to establish an ASEAN community comprising 3 pillars. 2003 में इन्होंने EU को देखते हुए खुद भी एक आसियान कम्युनिटी बनाई, जिसके 3 स्तंभ हैं. मेनली द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, द आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड द आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी. द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी was based on the conviction that outstanding territorial dispute should not accelerate into the armed confrontations. यानी आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी का सबसे बड़ा काम ये था कि अगर आसियान देशों में कोई सीमाओं को लेकर लड़ाई है तो वो, या कोई मतभेद है तो वो हथियारबंद लड़ाई में ना कन्वर्ट हो. By 2003, ASEAN had several agreements in place by which the member state promised to uphold peace, neutrality, cooperation and non-interference. So 2003 में ही आसियान देशों ने कुछ समझौते किए हैं जो इस बात पर टिके हुए हैं कि इस रीजन में शांति बनी रहनी चाहिए, तटस्थता बनी रहनी चाहिए, एक दूसरे को सहयोग बना रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ कोई देश दूसरे के टेरिटरी में इंटरफेरेंस नहीं करेगा. एंड एवरी वन ऑफ देम विल रिस्पेक्ट ईच अदर्स नेशनल डिफरेंस एंड द सॉवरेन राइट्स. That is why they have made the ASEAN Regional Forum, which was established in 1994. This is the organization that carries out the coordinations of security and foreign policy. But ASEAN still remains principally an economic association, while the ASEAN region as a whole is a very smaller economy as compared to US or EU and Japan, but its economy growing much faster than that of these. देखा जाए तो आसियान जो है वो EU के मुकाबले, US के मुकाबले एक बहुत छोटी सी इकोनॉमी है, लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था है, ये जो आसियान कंट्रीज़ की इकोनॉमी है, इट इज़ ग्रोइंग मच फास्टर देन एनी ऑफ द अदर कंट्री. दिस अकाउंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस बोथ इन द रीजन एंड बियॉन्ड. और इसकी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग एवरीवन, इट इज़ इफेक्टिव एवरीवन. So the objective of ASEAN Economic Community are to create a common market and production base within the ASEAN states and to aid social and economic development of the region. तो आसियान की दूसरी जो कम्युनिटी है उसका नाम है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी,
इसका जो मुख्य काम है वो यही है कि ये आसियान देश एक कॉमन मार्केट क्रिएट करे जिसकी की प्रोडक्शन भी आसियान कंट्रीज़ में हो, सो दैट जो ट्रेड बेनिफिट्स हैं दे कैन बी एंजॉयड ओनली बाय द आसियान कंट्रीज़. ASEAN states, these ASEAN states are improving the existing ASEAN dispute settlement mechanism to resolve the economic disputes. ASEAN has focused on creating a free trade zone for investment, labor, and services. I think I have made myself clear. They are making a free trade zone in ASEAN countries so that the people of these countries can move freely in these ASEAN countries for the investment, for the labor, and for the services. For example, India and Nepal is having free trade zone. जैसे नेपाल के लोग भारत में आते हैं, भारत के लोग नेपाल जाते हैं ट्रेड के लिए और जॉब्स के लिए. इन द सेम वे द आसियान पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री फॉर गुड जॉब्स. That is why the US and China have already moved fast to negotiate FTAs with ASEAN. और इसी वजह से चाइना और US दोनों चाहते हैं कि आसियान देशों में उन्हें भी FTA का मौका मिले. So ASEAN is growing into a very important regional organization. They have their vision, which is known as ASEAN Vision 2020. It has defended an outward-looking role for ASEAN in international community. ऐसा माना जाता है कि 2020 तक आसियान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में भी अपनी पहचान दर्ज करेगा. This builds on existing ASEAN policy to encourage negotiation over the conflicts in the region. Thus, ASEAN has mediated the end of Cambodian conflicts, the East Timor crisis, and meets annually to discuss the East Asian cooperation. The current economic strength of ASEAN, especially its economic relevance as a trading and investment partner to the growing ASEAN economies such as India and China, make this region an attractive proposition. मैंने अभी आपको समझाया कि आसियान एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इसी की वजह से जो इंडिया है, चाइना है, दे वांट टू मेक फेयर रिलेशंस, गुड रिलेशंस विद आसियान. During the Cold War years, Indian foreign policy didn't pay proper attention to ASEAN. But in the recent year, India has tried to make the amends. It signed FTA with 2 ASEAN members, that are Singapore and Thailand. शीत युद्ध के दौर में जिस समय USSR अपने चरम पर था, उस समय भारत ने आसियान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध बनाने की कोशिश नहीं की. पर अब भारत इस ओर पूरी तरह सजग है. भारत ने सिंगापुर और थाईलैंड के साथ फ्री ट्रेड पर समझौता किया है. एंड इट इज़ ट्राइंग टू साइन एन FTA विद आसियान itself. ASEAN's strength, however, lies in its policy of interaction and consolidation with the member state. तो आसियान की जो स्ट्रेंथ है, जो पार है, वो क्या है? इसकी पॉलिसी एक दूसरे से बातचीत करने की, एक दूसरे का सहयोग करने की. इट डायलॉग्स विद इट्स पार्टनर्स एंड विद अदर नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ the only regional association in Asia that provides a political forum where the Asian countries and major power can discuss the political and security concerns. So ASEAN एक ऐसा मंच बन चुका है जहाँ पर एशियाई देश अपने राजनीतिक और अन्य मुद्दों को बैठकर, सिक्योरिटी के चाहे इशू हों या कोई भी हो, उन्हें बैठकर आपस में डिस्कस कर सकते हैं.
So I hope that all of you must understand ASEAN, and I am going to begin with a new topic, and this new topic is the rise of Chinese economy. चीनी अर्थव्यवस्था का आगे बढ़ना. Let us now turn to the third major alternative centers of power and our immediate neighbor. What was the first center? That was European Union. The second center was ASEAN, and the third center is China. China's economic success since 1978 has been linked to its rise as a great power. You all know that China is a communist country. और कम्युनिस्ट कंट्री ने अपने इकॉनमी को लिबरलाइज किया इन 1978 में, और यहीं से चाइनीज़ इकॉनमी जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगी. इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी सिंस द रिफॉर्म्स फर्स्ट बिगन देयर. इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द US एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बाय 2040. आपकी बुक के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है, जो इंटरनेशनल एरिना है उसके हिसाब से माना जाता है कि बाय 2040 तक चाइना दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होगा. वैसे तो आजकल जो सिचुएशन है चाइनीज़ ग्रोथ की, वो शो कर रही है कि बिफोर 2040 इट विल बी अ सुपर पावर. सो its economic integration into the region make it the driver of East Asian growth, thereby giving its enormous influence in the regional affairs. Its strength of its economy, together with other factors such as population, landmass, resources, regional location, and political influence, adds to its power in the significant ways. वैसे तो चाइना एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके कुछ वजहें हैं कि इतनी फास्ट क्यों ग्रो कर रही है. इसके पास एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, इसके पास एक बहुत बड़ा एरिया है जिसे आप लैंड मास कह सकते हैं. ये प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, और इसके अलावा इसकी क्षेत्रीय लोकेशन, इसकी स्थिति एक तरफ आप देखते हैं कि ये यूरोप से अटैच होता है, दूसरी तरफ ये एशिया से अटैच होता है. एंड इट्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है. एक कम्युनिस्ट कंट्री में अगर आपको चैप्टर 2 याद हो तो जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो सभी डिसीजन एक सरकार के द्वारा लिए जाते हैं. देयर आर नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज. There is only one party, and that is Communist Party. तो जब पावर एक ही हाथ में होती है तो डिसीजंस बहुत तेजी से लिए जाते हैं. After the inception of People's Republic of China in 1949, following the Communist Revolution under the leadership of Mao, its economy was based on the Soviet model. You all know that China was divided under the sphere of influence. ये बहुत सारे देशों के कब्ज़े में था. चाइना कभी किसी एक देश के कंट्रोल में नहीं था. रादर चाइना में सभी देश खुला व्यापार कर सकते थे, जितने भी यूरोपियन पावर्स थी. इसके अलावा जापान भी वहाँ पर शामिल था. ये सब चाइना को अपने अपने हिस्से से बांटे हुए थे, और 1949 में इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ कम्युनिस्ट कंट्री. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक that how China can be a superpower in 2040. So your first heading is communist rule. As I told you earlier that it was a communist country, it is a communist country. The economically backward communist China chose to sever its link with the capitalist world. It has a little choice but to fall back on its own resources and for a brief period on Soviet aid and advice. जब चाइना आज़ाद हुआ तो उस वक्त कम्युनिज्म अपनाने के अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं था. इसके पास सिर्फ USSR का सपोर्ट था, और जो पूंजीवादी देश हैं उनके साथ इसका कोई ट्रेड व्यापार नहीं था.
दिस मॉडल वॉज टू क्रिएट अ स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्री. कम्युनिज्म में मैंने आपको पहले ही बताया एवरीथिंग वॉज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. तो यहाँ पर भी चाइना के पास स्टेट ओन्ड यानी सरकारी नियंत्रण वाली बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था. सो दे स्टार्टेड इट and they got capital accumulated from the agriculture. As it was short of foreign exchange that it needed in order to buy technology and goods on the world market, China decided to substitute imports by domestic goods. मैंने बताया चाइना के पास कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी देशों से कोई व्यापार नहीं था, इसके पास पूंजी भी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए इसने अपने यहाँ पर डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज थी, डोमेस्टिक गुड्स जो थे, जो घरेलू उत्पाद था, उसको बढ़ाया. दिस मॉडल अलाउड चाइना टू यूज इट्स रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश फाउंडेशंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑन अ स्केल दैट डिडंट एग्जिस्ट बिफोर. और धीरे धीरे चाइना ने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया. सेकेंडली, employment and social welfare was assured to all the citizens. The China moved ahead of most developing countries in educating its citizens and ensuring the better health for them. मैंने आपको दूसरा फैक्टर भी बताया था कि कम्युनिज्म में क्या होता है, सभी लोगों को काम का अधिकार दिया जाता है और सारी पूंजी जो है वो सरकार की हद की होती है. तो इसीलिए चाइना ने भी सोशल वेलफेयर और एजुकेशन का रास्ता अपनाया. ये एक ऐसा देश बन गया जहाँ पर सभी लोगों को बेटर हेल्थ केयर दी गई और प्रॉपर एजुकेशन दी गई. द इकोनॉमी ऑल्सो ग्रो एट अ रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ 5-6%, बट एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 2-3% इन द पॉपुलेशन meant that economic growth was insufficient to meet the needs of a huge country. हालांकि इनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन साथ साथ एक फैक्टर भी था कि यहाँ जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ रही थी. जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ 5-6% थी, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ 2-3% पर एनम थी. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज नॉट सफिशिएंट टू जनरेट अ सरप्लस फॉर इंडस्ट्री. वहाँ पर जो खेती थी वो सिर्फ लोगों का पेट ही भर पा रही थी और इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ सरप्लस प्रोडक्शन, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं कर रही थी. जैसा कि आपने चैप्टर 2 में देखा, देयर वर सम क्राइसिस इन द स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी इन USSR. सो एग्जैक्टली सिमिलर क्राइसिस was to face by China. Its industrial production was not growing fast enough. International trade was very less and per capita income was very low. चाइना का क्या हो रहा था, इंटरनेशनल ट्रेड था नहीं, पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी. सो चाइनीज़ लीडरशिप टुक अ मेजर पॉलिसी डिसीजन इन 1970. 1970 में इन्होंने कुछ अपनी नीतियों में बदलाव किया. चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद एस्टैब्लिशिंग रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स. और 1972 में दे हैव स्टार्टेड मेकिंग रिलेशंस विद US. Premier Zhou Enlai, the Chinese president, proposed 4 modernization, that is agriculture, industry, science and technology in 1973. By 1978, the then leader Deng Xiaoping announced the open door policy. और मैंने आपको पहले ही बताया 72 में इन्होंने US के साथ रिलेशन सुधारे और इसके बाद 73 में इन्होंने ओपन डोर की बात की एंड 78 में जो उस समय का लीडर था डेंग जियोपिंग, उसने खुले द्वार की नीति अपना दी जिसका नाम था ओपन डोर पॉलिसी. दिस पॉलिसी वाज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द अब्रॉड. और ओपन डोर पॉलिसी से जो चाइना की पूंजी की समस्या थी वो धीरे धीरे पूरी तरह ख़त्म हो गई. नाउ चाइनीज़ डोर्स आर ओपन फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द कंट्री. बट चाइना ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो मांगी
लेकिन ऑन इट्स ओन कंडीशंस. इट वॉज नॉट लाइक यूएसएसआर. चाइना ने यूएसएसआर की तरह शॉक थेरेपी की नीति नहीं अपनाई. It followed its own path in introducing a market economy. The Chinese didn't go for shock therapy but opened their economy step by step. For example, the privatization of agriculture in 1892 was followed by privatization of industry in 1998. देखा जाए तो चाइना ने अपनी खेती का निजीकरण किया, प्राइवेटाइजेशन किया 1982 में, तो ट्रेड का प्राइवेटाइजेशन किया 1998 में. एंड द ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड ओनली इन सम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वेयर द फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड सेट अप द एंटरप्राइजेस. और चाइना जहाँ जिन क्षेत्रों में खुद अच्छी तरक्की कर रहा था वहाँ पर उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं लगने दी. यानी जो इंडस्ट्रीज़ उसकी वीक थी, जो सेक्टर उसके वीक थे, उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए और सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने दिया. सो दीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑल्सो ग्रू अप. इन चाइना द स्टेट प्लेड एंड द कंट्रीज टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेटिंग अप अ मार्केट इकोनॉमी. तो ऑल्दो चाइना ने प्राइवेटाइजेशन अपनाया, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो उनकी गवर्नमेंट है वो आज भी एक सेंट्रल रोल प्ले करती है कि कौन सी कंट्री कितना पैसा किस फील्ड में इन्वेस्ट करेगी. दिस इज़ डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री. सो दिस SEZ या सेज पॉलिसी हेल्प द चाइनीज इकोनॉमी टू ब्रेक फ्रॉम स्टैग्नेशन. Privatization of agriculture led to the remarkable rise in agriculture production and the rural income. मैंने अभी बताया इन्होंने प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया 82 में. इससे क्या हुआ, जो खेती थी वो बहुत आगे बढ़ी और गांवों की इनकम भी बढ़ गई. हाई पर्सनल सेविंग्स इन रूरल इकोनॉमी लीड टू एन एक्सपेंशनल ग्रोथ इन रूरल इंडस्ट्री. और चाइना ने क्या किया, अपनी एग्रीकल्चर को डेवलप रखते हुए रूरल इंडस्ट्री यानी गांवों की जो इंडस्ट्री होती है उसे आगे बढ़ाया. द चाइनीज इकोनॉमी इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रू एट अ फास्टर रेट. द न्यू ट्रेड लॉज एंड अ क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेड टू द फिनोमिनल राइज इन द फॉरेन ट्रेड. Now, China has become the most important destination for foreign direct investment (FDI) anywhere in the world. और अब तक चाइना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट सेंटर बन चुका है. It has large foreign exchange reserves that now allow it to make big investment in other countries. चाइना के पास विदेशी पूंजी के भंडार हैं और ख़ुद अब चाइना दूसरे देशों में निवेश करने लगा है. चाइनाज accession to WTO in 2001 has been a further step in its opening to outside world. और 2001 में चाइना जो है वो खुद अपनी शुरुआत कर चुका है बाहर के देशों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. The country plans to deepen its integration into the world economy and shape the future of world economic order. और चाइना एक उस स्थिति में आ रहा है कि वो विश्व अर्थव्यवस्था को अपने तरह से चलाने की कोशिश कर सकता है. पर इस पॉजिटिव चीज़ों के साथ चाइना की कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. कहते हैं while the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefits of its reform. Unemployment has risen in China, with nearly 100 million people looking for the jobs. Except that the female employment and the condition of work are as bad as in Europe in the 18th and 19th century. Thirdly, there is environmental degradation and corruption have increased beside a rise in economic inequality between the rural and urban residents, coastal and inland provinces. तो चीनी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है.
पर इसके इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के भी कुछ नुकसान चाइना में देखे जा रहे हैं। चाइना में बेरोज़गारी बढ़ रही है, लगभग 100 मिलियन लोग बेरोज़गार हैं। जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बहुत अच्छी दशा नहीं है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस तरह से पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं और इस तरह की समस्याएं झेल रही हैं जो 18वीं शताब्दी में यूरोप में थी। इसके अलावा देयर इज़ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। वहाँ पर चाइना में जो मौसम है, जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण पर नुकसान है वो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। इसके अलावा जो चीन है वो भी रिच रीजन और पुअर रीजन यानी अमीर क्षेत्र और गरीब क्षेत्र में बट रहा है। However, regionally and globally, China has become an economic power to reckon with. लेकिन इस बात से बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि क्षेत्रों में और अर्थव्यवस्था में चाइना एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। It has some issues with Japan, US, ASEAN and Russia. These are being tempered by economic consideration. It hopes to resolve its differences with Taiwan with its regard and renegade province by integrating it closely into the economy. और चाइना अपनी अर्थव्यवस्था के वजह से अपने अन्य मुद्दों को भी सुलझाने की स्थिति में लग रहा है। So you have seen that there are 3 major alternatives except US in the world. The first was European Union, दूसरा क्या था आसियान और तीसरा क्या है बढ़ती हुई चीनी अर्थव्यवस्था। So this ends our today's lecture. Please do all the work given to you. Thank you.